Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel, Tareem for Everyone. In this video, we are going to cover section 8.1, Introduction to Percentage and Work Example 1 and 2 from chapter number 8, Percentage. And this chapter is from New Syllabus Mathematics, book 1, or you can say P1. So if you're using this book D1 or book 1, so you may find section 8.1 Introduction to Percentage on page number 185. So now let's start. Percentage. परसेंटेज एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो है बहुत दफ़ा जो है सुनते रहते हैं, ठीक है, कि इतने परसेंट जो है लीटर पेट्रोल जो है बढ़ गया, या इतने परसेंट जो है सेल लगी हुई किसी आउटलेट में, किसी बुटीक में, या इतने परसेंट जो है इंक्रीमेंट लग गया है किसी की सैलरी में, लाइक दिस। ओके, सो ये सारी जो है परसेंटेजेस से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल्स अभी तक मैंने बताई हैं, ये हम लोग डेली लाइफ में बेतहाशा जो है सुनते रहते हैं. So now let's start. Basically, what is percentage? So percentage are very useful in conveying information in everyday life. There are 100 cents in a dollar. There are 100 cents here in a century. Also, we often see advertisement or ads which carry phrases like warehouse sale at 50% off and gross domestic product is up to 0.5%. This give us a clear clue about the meaning of the word percent, and you can say these are the example of percentages. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल $1 में जो 100 सेंट्स होते हैं, या 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, ठीक है, या वेयर हाउस सेल पे जो है 50% डिस्काउंट है. ये सारी जो एग्जाम्पल हैं बेसिकली परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग जो है डेली लाइफ में सुनते रहते हैं बेतहाशा. So the word percent basically originated from the Latin phrase percentum, and or you can say French phrase percent. Per means divided by, cent or centum means 100. That means per 100 or out of every 100. Okay, so the percent is represented by this symbol percentage. Therefore, here it is an example that if a survey found 89% of students use a smartphone, that means 89 students out of 100 uses a smartphone, or 89 upon 100 student uses a smartphone. Okay, so this is the basic introduction of percentage that you may find on page number 185 of your book, New Syllabus Mathematics, book 1 or D1. So here are some more examples. Okay, like sale 10% ऑफ मीन्स कि इस शर्ट पे जो 10% ऑफ है, मतलब कि 10% डिस्काउंट है. जैसे कि कोई शर्ट है या कुछ भी कह लें, मेंस शर्ट है या टी शर्ट है, वो कहते हैं कि उसमें कितने कौन कौन से फैब्रिक का जो कितना कितना परसेंट है. फॉर एग्जांपल 30% कॉटन एंड 70% पॉलिस्टर से बनी हुई है वो शर्ट या टी शर्ट या बेडशीट, जो भी कुछ जो भी कहा जाए हमें वो कह सकते हैं. और या फिर जो है न्यूज़पेपर में कोई ऐड है कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को जो है 10% उनकी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट लगा दिया गया है, जो कि उनके लिए अवार्ड है. ठीक है, सो सैलरी में इंक्रीमेंट लगना, या फिर यूँ कहा जाए कहीं से कोई लोग अपनी जो है जॉब छोड़ जाए, उसमें कितने परसेंट जो है लोगों का डिक्रीमेंट आ गया है उस प्लेस में. तो ये सारी चीजें जो है परसेंटेजेस से रिलेटेड है. ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. So percentage, fractions and decimal, these are the example, basic example of percentage, and you may find this on page number 185. So here it is a square grid and it contains basically 100 small square or 100 small parts, figure 8.1. Okay, so Figure 8.1 shows a square grid divided into 100 parts. 100 parts कैसे हम देख लेते हैं.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here it is 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 tens are 100. So 100 square small square are equal parts. So 7 or equal की 75 parts are shaded. जो light blue part है वो shades है. So 75 parts are shaded. So 10 20 30 40 50 60 70 75. Okay, 75 parts are shaded. Since there are 100 parts altogether, so we can say that 75 out of 100 parts or 75 of upon 100 of the square grid is shaded. So 75 upon 100 basically it is the form of fraction, and फ्रैक्शन भी कौन से टाइप है फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन तो द फ्रैक्शन 75 अपॉन 100 कैन बी एक्सप्रेस एज 75%. 75 अपॉन 100 को हम परसेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपल 75% लिख सकते हैं. कन्वर्सली 75% कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 75 अपॉन 100. ओके सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. पेज नंबर 86 पे एक स्टेटमेंट आप लोगों को मिलेगी. इन जनरल x% is defined as x parts per 100. Means x% is equal to x upon 100. So how can you define 100%? 100% means 100 upon 100. Means that this 100 divided by 100 is equal to 1. So 100% means 1. So a percentage can be greater than 100%. Percentage जो है वो basically 100% से greater भी हो सकती है. Not necessary to equal to or less than 100. ठीक है. So percentage can also be greater than 100%. So उसकी example है. So do you understand this phrase? This year's sale is 200 of last year's sale. Means कि इस साल की sale जो है last year की 200% है. So सिंपल जो है किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग सपोजिशन. तो सपोज द सेल्स ऑफ अ कंपनी लास्ट ईयर वाज $100 million and the sales of the company this year is $200 million. The sales of the company this year is 200 divided by 100. पहली चीज तो यूनिट सेम होनी चाहिए. तो यूनिट सेम है हमारी डॉलर में है. 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100%. यहाँ पे एक चीज ये मिस है. तो 0 0 कैंसिल आउट विथ 0 0. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100% इज 100%. सो दिस ईयर सेल इज 200% ऑफ इट्स लास्ट ईयर. ठीक है. This year's sale is 200% of last year's sale. So ये था यहाँ तक कि जो है ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना बताया है. ये सिर्फ परसेंटेज ग्रेटर देन 100% की जो है एग्जाम्पल है और ये बताना चाहा है कि इस स्टेटमेंट को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए. तो ये बेसिक से एक एग्जाम्पल थी. तो आई होप से समझ में आई होगी. तो इससे ये आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि परसेंटेज कैन बी ग्रेटर देन 100%. ठीक है. तो यहाँ तक आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स जो है समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. Here it's work example 1 and you may find this example on page number 186. So example 1 is expressing a percentage as a fraction and vice versa. Achha, if you wish to express percentage as a fraction, so just we have to simply divide that value by 100. Or if you wish to express a fraction as a percent, then simply multiply that value by 100%. Okay. So first we have to do part A, express each of the following percentage as a fraction. So first part is 88%. So 88% means 88 upon 100. इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने बताना है. 2 4 8 2 4 8 2 5 10 0 as it is. 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 उधर कैरी किया 25. So 22 upon 25. ठीक है जी. आगे चलते हैं. Here it's 128%. 128% is equal to 128 upon 100.
So 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 0 as it is. 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10. So 32 upon 25, and we have to convert it into mixed fractions. So 22 upon 25. How can we? 25 under 25. 22 minus 25 is 7. So 1 whole 7 upon 25. Fine. 0.5% is equal to 0.5 divided by 100. So 0.5 divided by 100 multiply divided by 10. Why? Because decimal के बाद only one digit. So 10 10 multiply by 0.5 is 5. सॉरी मुझे जो है कैंसिलेशन का इतना रहता है कहीं ना कहीं, तो जो है मैं कैंसिल करने लगी थी. So 0.5 multiply by 10 is 5 and 100 multiply by 10 is 1000. So 5 ones are 5, 5 twos are 10, 1 upon 200. अच्छा, इसका ये एक मेथड है और एक और मेथड है जो कि मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ. पार्ट 3 का सिंपल है वो बहुत सिंपल है जो कि मुझे लगता है 0.5% इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो वी नो दैट जब भी डेसिमल पॉइंट होता है हम उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लेस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, उतने जीरो लगा देते हैं डिनोमिनेटर में. अब ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू मौजूद है पहले से, दैट इज 100. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का साइन यूज करूंगी सबसे पहले. अब देखूंगी डेसिमल रिमूव करूंगी. जैसे ही मैं डेसिमल रिमूव करूंगी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के साइन के बाद 1 आ जाएगा. एंड हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ओनली 1. सो हियर इट इज 1 0. So 5 upon 100 multiply by 10. So 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2 multiply by 100 is 200. So 1 upon 200. ठीक है, सो आप लोग चाहे ये मेथड यूज करें या फिर ये वाला मेथड यूज करें, इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, तो मुझे चूंकि ये वाला मेथड आसान लगता है तो जो है मैं ये इसी मेथड के थ्रू जो है एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज. आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. पार्ट 4 9 होल 2 अपॉन 3% इज इक्वल टू, इसको पहले जो है हमने चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो 9 3 27, 28, 29, 29 अपॉन 3%. तो 29 अपॉन 3% मीन्स 29 अपॉन 3 डिवाइड बाय 100. ठीक है, सो ये डिवाइड का साइन इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिवाइड के बाद की जो वैल्यू है वो जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो 29 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100. So 29 multiplied by 1 divided by 300. So numerator is greater than, sorry, numerator is less than denominator. So it's a proper fraction. तो हमें कुछ नहीं करना आगे, ना ही डिवाइड करना है, ना ही जो कैंसिलेशन हो रही. So यहीं तक इसका आंसर है. आगे है पार्ट बी. पार्ट बी ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज. 1/2. 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो जस्ट सिंपली वी will multiply this value by 100%. So 1/2 is equal to 1/2 multiply by 100%. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 as it is. 50% multiplied by 1 is 50%. Here it is 1 whole 1/8. So first we have to change into an improper fraction. So 1 whole 1/8. 8 1s are 8. 8 1s are 8 plus 1 is 9. 9/8. 9/8 multiplied by 100%. So 100 multiplied by 9 is 900 divided by 8. ठीक है, डिवाइडेड बाय 8. आगे चलते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं. एट वन जा 8, 9 minus 8 is 1, 0 as it is. 8 1 जा 8, 10 minus 8 is 2, 0 as it is. 8 2 जा 16, 10 minus 6 is 4. पॉइंट लगाया, 0. 5 8 5 जा सॉरी 40. 40 cancel.
So 112.5%. So here it is the example of percentage is greater than 100%. Okay, so this way we have converted 1/8 into percent, and it's equal to 112.5%. ठीक है, आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों के। आगे चलते हैं। Here it's work example 2, and you may find this example on page number 187. So simple, if you wish to express any decimal number in the form of percentage, simply divide that value by 100%. Or if you wish to convert any decimal to percentage, then you simply multiply that value by 100%. ठीक है, so 85% part A है क्या, मतलब you have to convert percentages into decimal. तो percentage से decimal में जाने के लिए हमने divide करना है 100 से. So 85% part 1 is of A is 85%. So 85 divided by 8, 100. So 85 upon 100 means simple method है. Divided by 200 100. So how many zero are there? 2. तो सिंपली मैं 2 डिजिट जो है डेसिमल अपना रिमूव कर दूंगी. अभी इस टाइम समझ लिया 85.0 है. 85.0 का मतलब 85 होता है. तो समझ ले पॉइंट यहाँ है 85 अपॉन 100. मुझे डेसिमल में चेंज करना है, तो सिंपल मैं अपना डेसिमल 2 डिजिट पहले जो कर दूंगी, तो 0.85 हो गया. सिंपल. अब है 2 to 8% is equal to 2 to 8 upon 100. ठीक है, and we have to convert this value into into decimal. So here in denominator there are 2 zeros, so 2 digit पहले आपने जो है decimal जो है move कर देना है, तो 2.28. simple. 0.7% is equal to 0.7. ठीक है, तो 0.7 upon 100. तो here there are 2 zero in denominator. पॉइंट के से पहले एक जीरो है, तो पॉइंट से पहले एक और जीरो ले लेंगे हम. फर्स्ट करें तो 2 जीरो हो गए, तो इधर आ जाएगा पॉइंट, तो 0.007. सिंपल. नेक्स्ट इज 7 whole 1/8%. पहले हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. then we can able to convert this percentage into decimal. So 8 7 is 56. 56 plus 1 is 57. 57 upon 8. 57 upon 8 divided by 100. 57 upon 8 multiplied by 1 upon 100. So 57 multiplied by 1 is 57, and 8 multiplied by 100 is 800. ठीक है, अब क्या करना है जरा आप देखिए. 57 divided by 800. ठीक है, पॉइंट लगाया 0. 800 is still greater than 570, तो मैं एक और 0 लगाऊंगी. एक और 0 लगा दिया. So 800 now is less than 5700. So 800 multiplied by 7. 7 zeros are 0. 7 zeros are 0. 7 8s are 56. 800 7s are 5600. Sorry, 7 minus 6 is 1. 5 minus 5 is 0. पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, मैं एक और 0 लगा लूंगी. So 800 ones are 800. So simple. मैं यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर देती हूँ. सब्ट्रैक्ट 1000 minus 800 is 200. ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 लगाया. 800 2s are 2 zeros are 0. 2 zeros are 0. 8 2s are 16. So 800 2s are 1600. So here it is 0 0
यहाँ से मैं कैरी लूंगी, 10 माइनस 6 इज 4, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ, एक और जीरो लगाया, एंड 800 5 जा 4000, कैंसिल, तो 0.07125. So this is the answer of this क्वेश्चन। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ परसेंटेज। अब हमने जो है डेसिमल्स को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल से परसेंटेज में जाने के लिए हमने डेसिमल वाली वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है 100% से। 0.16 इज इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0.16 है और मल्टीप्लाई करा रहे हैं 100%, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट बाद जो है मैं रिप्लेस कर दूँ, देखो कन्वर्ट हो गया, तो हियर इट इज 16%। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिमूव किए थे, यहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ। वो यहाँ पे मैं बैकवर्ड में गई थी, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड जा रही हूँ, मतलब कि राइट हैंड साइड पे आ रही हूँ। मल्टीप्लाई करवाने में राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं और डिवाइड कराते हैं, जब हम लोग रिमूव कर रहे होते हैं नीचे से जीरो, तो जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। तो 1.456 मल्टीप्लाई बाय 100%, 200, तो ये पॉइंट इधर लगा हुआ है, तो ये इधर आ जाएगा, तो 145.6। सिंपल। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करनी है, तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन कर लें। चले, तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 100%, so simple is that 100 multiply by 0.16, 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 ones are 6, 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 1 ones are 1, zero zeros are 0, 0 zeros are 0, 0 ones are 0। ठीक है, पहले हम ऐड कर लेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर होता है। ठीक है, here are 100, here it is a 100 and there is no decimal point, so it means that no digit after decimal point, so it means that 0 digit after decimal point, here 2 digit after decimal point, so 2 plus 0 is 2, so place decimal point before 2 digits, तो यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाया तो 016.00, तो इट मींस दैट इट इज 16%। सिंपल। सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, सो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। 1.456, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 0, 0, 0, 0, 4 0 आ जाएंगे, अगेन 4 0, 1 2 3 4, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, so here it is 0 0 6 5 4 1, so here 3 digit after decimal point, here 0 0 plus 3 is 3, 1 2 3, so 145.6%। ठीक है, तो ये थी वर्क एग्जाम्पल 1 एंड 2। मैंने जो है कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी कि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर किसी को भी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, सो यू मे कमेंट योर क्यूरी एंड एनी टाइम आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम एज सून एज पॉसिबल। सो thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone. Also don't forget to press like button and press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइम पे मिलती रहे। So thank you once again. Allah Hafiz.